Good morning, student. Today is our topic writing chemical formula. A chemical formula of a compound, chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. The chemical formula of different compound can be written very easily. We need to learn symbol and combining capacity of the element. Combining capacity of the element means valency. If you know the symbol and valency of element, atom of an element, you can write the chemical formula. So, I send you symbol and symbol of some ion along with valency in last class. I send you. So, with the help of these ion symbol and valency, you can write down the formula. मैंने लास्ट क्लास में सेंड किया था. सपोज से सोडियम का सिंबल मैंने किस टाइप से किया था, मतलब सम मेटेलिक आयन सिंबल्स, जैसे सम मेटेलिक आयन सिंबल. मेटेलिक नॉन मेटेलिक, जो पॉजिटिव वाला होगा देन मेटेलिक आयन है. नेगेटिव चार्ज वाला, two type of ions na, positive charge and negative charge. Positive charge ion is known as metallic ion. So sodium is a metal. The symbol of sodium is Na, and write down the plus charge. Potassium, K symbol है, one charge है. Silver, one charge. Copper, written like this. This is show the valency copper की. And magnesium, Mg, two charges है, so you can write down like this also. 2 प्लस, 2 प्लस के साइन बनाए या 2 लिख करके प्लस लिखे. मैग्नीशियम. कैल्शियम, Ca सिंबल है, 2 चार्जेस होते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. जितने हैं उतनी टाइम ना लिख करके नंबर भी करके कर सकते हैं. आयरन, ब्रैकेट में दिस मीन्स द वैलेंसी, 2 वैलेंसी मीन्स ब्रैकेट में करके, क्योंकि those some element have multiple valency. Sometimes they combine with 1 electron combination, sometimes combine 2 electron combination. So valency is variable, sometimes 1, sometimes 2. That's why if you have multiple valency, then you write down the bracket and write down the valency. This is the valency. Copper,
aluminium, iron, these are the metallic ion, and some non-metallic ion. Non-metallic elements. Hydrogen, H. Hydrogen sometime cation form and sometime anion form. Both possibility in hydrogen case, because hydrogen has only one electron, so sometimes they donate and sometimes they accept. That's why hydrogen ion and hydride ion, both kind of ions form in hydrogen. Chloride, bromide, सिंबल है Br, ब्रोमाइड का. एंड आयोडाइड, आयोडाइड में आई सिंबल. ऑक्साइड. ऑल ऑफ यू लर्न 2 वाला वैलेंसी का, 1 वाली वैलेंसी का एंड 3 वाली वैलेंसी का. Some example given in your book. All of you learn this example. Sulfide 2 valency, nitrite, some polyatomic ion also present. Polyatomic ion, polyatomic ion. If 2 or more than 2 ion form a group and have a charge, then known as a polyatomic ion. Symbol of polyatomic ion in your course: ammonium, NH4, 1 charge. Hydroxide, nitrate, NO3, 1 charge. Hydrogen carbonate, HCO3, 1 charge. कार्बोनेट, इसको लर्न करना पड़ता है. ऑल ऑफ यू लर्न एंड देन राइट डाउन द फॉर्मूला. फर्स्ट वर्क, ऑल ऑफ you learn the symbol and charge of ions. What kind of charge have? Positive or negative? Positive charge known as cation and negative charge known as anion. So, and polyatomic also. फॉस्फेट, PO4. ये इस टाइप से all of you learn this table. First you understand what is valency. The combining power, or capacity of an element is known as valency. First you understand valency. The combining power or capacity of an element is known as valency. First, all of you learn the symbol and
वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी। जितना जिसका चार्ज होगा उतना ही उसकी कंबाइनिंग पावर होगी। और उसके पता होने पे हम फॉर्मूले को इजीली लिख सकते हैं। वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम ऑफ एलिमेंट will combine with another atom of element and form a chemical compound। किस तरीके से एक एलिमेंट का एटम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन होंगे अदर एटम ऑफ एलिमेंट से, कैसा कंपोजिशन होगा, दैट explained by the valency। Valency of an atom of element can be thought of as hand or arm of atom। आप वैलेंसी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस एटम के कितने हैंड्स हैं, तो दूसरे वाले एटम को कैसे कैच करेगा। अगर दो रेस हो रही हैं तो किस तरीके से कैचिंग होगी, कैसे कंबाइन होगी, कैसे पकड़ेगा। तो आप हैंड के फॉर्म में भी आप सोच सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए रेस हो रही है, एक के पास 8 हैंड है, एक के पास 2 हैंड है, तो जिसके पास 8 हैंड है वो कितने को कैच कर सकता है। 8 हैंड है तो 2 वाले को 2 डिवाइडेड बाई 8 कर दो 4। किस टाइप से कंबाइन होगा, किस टाइप से वो कैच करेगा, दैट इज कैन बी रिप्रेजेंट बाय द वैलेंसी। सो आप वैलेंसी की बेसिस पे फॉर्मूला लिख सकते हैं एंड उनके कुछ रूल्स हैं। रूल्स में जो होते हैं, वैलेंसी और चार्ज ऑफ ऑन आयन मस्ट बी बैलेंस। वैलेंसी को हम बैलेंस करके लिखते हैं बिकॉज जो आयंस होते हैं, कैटायंस एनायंस, कितने चार्ज कंटेन कर रहे हैं, किस रेशियो में हैं, और फाइनली कंपाउंड जो होगा वो न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कैंसिल होंगे एंड देन द कंपाउंड फॉर्म न्यूट्रल। सो वैलेंसी और चार्जेस ऑफ आयन मस्ट बी बैलेंस। इस टाइप से उसको बैलेंस करना है कि फाइनली जो न्यूट्रल हो। द वैलेंसी और charges on the ion must balance। सेकेंड लॉ है इसका, दिस इज फर्स्ट वन। व्हेन अ कंपाउंड consists of a metal and a non-metal। metal means positive containing ion and negative containing ion। किसी compound में if metal and non-metal both combine, the name of symbol of metal written first, the name of symbol of metal is written first। सपोज सोडियम क्लोराइड की हम बात कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। सोडियम क्लोराइड बना किससे है, सोडियम का फॉर्मूला N और ये Cl। इनका फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा, सोडियम Na इस है सोडियम का सिंबल एंड वैलेंसी। टेबल अगर करें तो टेबल से आप सोडियम लिखा जाएगा Na। क्लोराइड का ये कंबाइन हो रहे हैं सोडियम एंड क्लोराइड एंड देन फॉर्म द NaCl।
पॉजिटिव आयन और कैटायन रिटेन फर्स्ट। अगर हमें सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले हम लिखेंगे Na, then Cl, because sodium have positive charge. See, sodium have positive charge, that why we write sodium first. सोडियम को फर्स्ट में लिखेंगे एंड क्लोराइड हैव नेगेटिव चार्ज, तो राइट डाउन द आफ्टर द सोडियम। चार्जेस का दिस वन हैव प्लस चार्ज एंड दिस वन हैव माइनस चार्ज, सो 1 प्लस एंड 1 माइनस कैंसिल ईच अदर एंड 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती और हम फार्मूला लिखेंगे NaCl। आपने एक बार Na लिख दिया, इसका मतलब 1 तो है ही है, तो 1 को नंबर के फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो NaCl इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसी भी का भी आप लिख सकते हैं। सपोज आपको दे रहा है कि कंपाउंड फॉर्म बाय MnN, ठीक है, राइट डाउन formula. Just example how to write down. So first you write down M because M have positive charge and N have negative. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 प्लस है, इसमें 2 माइनस है। पहले हमें प्लस वाला लिखना है, दैट इज द रूल। जो कैटायंस हैं, जो पॉजिटिव कंटेनिंग चार्जेस हैं, इन फार्मूला write down first. All of you remember that thing. In combining of positive and negative ion, in case of formula, positive ion written first and then negative ion. ठीक है, इस टाइप से आप लिख लीजिए। फिर वैलेंसी राइट डाउन क्रिस क्रॉस मैथड। वैलेंसी की 2 प्लस चार्ज है, सो वैलेंसी M की वैलेंसी जो हो जाएगी वो 2 एंड N की वैलेंसी ऑल्सो 2। वैलेंसी राइट डाउन इन क्रिस क्रॉस मैनर। N की वैलेंसी M पे एंड M की वैलेंसी N पे, क्रिस क्रॉस मैनर, इसकी इस पे एंड इसकी वैलेंसी इस पे लिखी जाए। सो आप M2 एंड N2 बोथ आर कॉमन, बोथ आर सेम है, तो हम इसका सिंपल टर्म में रेशियो निकालते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सो 2 एंड 2 कॉमन है, सो 2 से हम ऐसे अगर कर देंगे तो इसमें 2 ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा एंड ये Mn, क्योंकि बोथ 2 हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा और फॉर्मूला होगा Mn। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। सो आप किसी का भी ऐसे इस टाइप से फॉर्मूला लिख लेंगे। फर्स्ट 2 रूल कि वैलेंसी और चार्जेस ऑफ आयन मस्ट बी बैलेंस। जो वैलेंसी क्या है, फर्स्ट यू रिमेंबर, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट एंड वैलेंसी और चार्जेस ऑफ आयन मस्ट बी बैलेंस। वैलेंसी है क्या, आयन के जो चार्ज कंटेनिंग पार्टिकल हैं, कितना चार्ज किस आयन में है, उसी से वैलेंसी डिसाइड होगी। वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग टेंडेंसी, हाउ टू कंबाइन एटम ऑफ वन एलिमेंट टू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। सो कंबाइनिंग टेंडेंसी है वैलेंसी, कैसे कंबाइन हो रही है फार्मूला या कंपाउंड के फॉर्मेशन में, वो फार्मूला उसी कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। सो हमें उसकी सबसे पहले सिंबल एंड वैलेंसी लर्न करनी होगी एंड देन राइट डाउन द फार्मूला। सो ये टेबल जो है 2 चार्ज आयन, 1 चार्ज आयन, 3 चार्ज आयन, कैटायन, एनायन,
आपको लर्न करना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस से आप उसको फिर फॉर्मूला कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि बैलेंसी को हमें बैलेंस करना होगा, क्योंकि कंबाइनिंग टेंडेंसी है। दूसरा किससे कैसे कंबाइन होगा, किस रेशियो में कंबाइन होगा, सो बैलेंस करना होगा, क्योंकि न्यूट्रल होगा नेचर में, जो नेचर में होगा कोई कंपाउंड न्यूट्रल होगा, तो उसको बैलेंस करना होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से। एंड metal containing or positive charge ion, write down the first, and negative charge ion, write down the after that positive charge ion. Suppose कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड फार्मूला कैसे करेंगे, इनका फार्मूला होगा CO। कैसे लिखा गया, कैल्शियम, टेबल से देख करके आप लिख लीजिए कैल्शियम का ये, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2+ ऑक्साइड, या आप ऐसे लिख सकते हैं 2-। फर्स्ट यू राइट डाउन आयन के फॉर्म में, पॉजिटिव आयन फर्स्ट लिखते हैं सो, एंड नेगेटिव आयन। वैलेंसी क्या होगी इसकी 2 और ऑक्साइड की भी 2। क्रिस क्रॉस मेथड से इसकी वैलेंसी इस पर और इसकी वैलेंसी इस पर आता है, क्रिस क्रॉस मेथड से। सो वैलेंसी हो जाएगी Ca पर ऑक्सीजन की, और ये भी, लेकिन दोनों कॉमन है सो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा CO। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमें फॉर्मूला लिखने के लिए पहले क्या, फर्स्ट यू लर्न द सिंबल एंड वैलेंसी, हाउ मेनी चार्जेस atom of element contain। First you all of you learn, first we write down the charges of ion and then find out the valency of participating atom of element, and then first write down the positive charge ion and then negative charge ion, and वैलेंसी राइट डाउन क्रिस क्रॉस मेथड, निगेटिव वाला जो आयन होगा उसकी वैलेंसी पॉजिटिव पे और पॉजिटिव वाले की वैलेंसी निगेटिव पे करेंगे, फिर सिंपल फॉर्म में कर देंगे। अगर वो डिवाइड हो रहे हैं कॉमन किसी नंबर से तो डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज वैलेंसी को हम अगर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो उसी टाइप से लिख देंगे। सपोज देखिए कंपाउंड बन रहा है, कंपाउंड फॉर्म between M and N, ठीक। राइट डाउन द फॉर्मूला, राइट डाउन केमिकल फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है। Compound between M and N, write down the chemical formula Mn। First you write down the valency, M पॉजिटिव है पहले लिखी जाएगी, N को नेगेटिव है सो बाद में। वैलेंसी लिखेंगे, वैलेंसी M पर 3 चार्ज है तो 3, N पर 2 है तो N की वैलेंसी 2। देन क्या होगा कि वैलेंसी राइट डाउन इन अ क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस क्रॉस वाइज, इनकी इन पर और इनकी इन पर। सो M2 एंड N पर आ जाएगा 3। इस टाइप से आप बैलेंस से लिख देंगे। तो केमिकल फार्मूला chemical formula of
कंपाउंड Mn का जो कंपाउंड होगा इसका ये फार्मूला। सो इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड फार्मूला लिख सकते हैं। फर्स्ट यू लर्न द सिंबल एंड valency of atom of an element, then write down the formula. First thing, valency or charges of ion must be balanced. Where compound consisting of metal and non-metal, the name of symbol of metal written first. And if valency convert into simple term, then you write down in the simplest form. ठीक है, अगर 1 है सो 1 को फॉर्मूले के साथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार सिंबल लिख दिया, इट्स मीन्स 1 तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है। सो डू नॉट राइट इफ 1 valency contain and convert into simple term. So all of you practice the write down the formula